सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का एपिसोड नंबर 15 जो कि हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमें सिंथिया मिल गई थी, जो कि एक अच्छी बात थी हमारे लिए, जिसे उसने हमें तारीफ़ वगैरह कर दी थी थोड़ी बहुत। तो वो एक अच्छी बात रही मेरे हिसाब से, और ये सही रहा एक्चुअली। तो आज के एपिसोड हम कंटिन्यू करने वाले थे। ठीक है, कल का वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था, तो आज के एपिसोड में हम कुछ शायद से रहेगा, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। सिटी भी थोड़ा बहुत चमचमाता हुआ है। ऊपर जाना है, यहाँ पे कुछ है। इसकी क्यूबोन के लिए कुछ तो क्या बोल क्या रहा है। यू मस्ट बी ए पोकेमॉन ट्रेनर, सो आई वॉज माइंडिंग माई sorry own business on Route 12 when I met this little guy. He seems very angry, but he is injured. Since you are actually a trainer, I thought maybe you could help me. Calm down. नहीं कर सकता ना भाई, पहला वाला मिशन कंप्लीट ही नहीं किया मैंने। सोचा था ऑफलाइन कंप्लीट करूँगा, पर आज पूरा कॉलेज में दिन बीत गया। Being a police officer in such a quiet little town is such an easy. अच्छा, यहाँ पे क्या है? अरेस्ट मिल गया है, जो कि यूज़फुल नहीं रहेगा, मेरी पहले नहीं यूज़ करनी। जाना किधर है? ऊपर। ओके, उधर पे अपने को वो दिख रही है, जो कि है, क्या बोलते उसको, हमारी वो क्या नाम है उसका। तो चलो डायरेक्ट उसी से मिलते हैं। The ancient Hupen's ruin. No one knows its true origin, or when it was really built. अच्छा, यहाँ पे कुछ तो है, फिर क्या हो सकता है इधर पे देखते। Asher, finally. So, what do you have to show me here? Follow me. It's inside. क्या है भाई अंदर, जो कि फॉलो करने को बोली। दिस इज़ वेयर आई वॉन्टेड टू ब्रिंग यू। भाई ये प्लेस कुछ ज़्यादा तगड़ी नहीं लग रही। वॉट इज़ दिस प्लेस? दिस प्लेस इज़ नोन एज द एंशंट यूपेस ruins, द रीजन्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट मिस्टीरियस माउंटेन. No one really knows its true origin or when it was built for sure. No one knows anything of it. How is that possible? That must be something that gives a clue. Exactly. I studied the text encrypted on the walls, and I looked into the meaning of the pictures. क्या meaning? I have a very logical hypothesis. Upon studying these ancient texts, I found massive similarities and even identicalities between this and ancient language called Ecclesi. It was a language. It was a language of an ancient empire which once ruled the continent Upest also lies on thousands of years ago. But if it is ancient empire that big, how come there is barely anything left by them? The sorry, the answer is in front of us. This is here. Is a prophecy left by them to warn us future civilization about something. क्या है भाई? मतलब लाइक ये कोई तो हिस्टोरिकल प्लेस है, जहाँ पे वो मतलब हिस्ट्री बता रही है ये प्लेस की। जो यूपेश रीजन था, उसमें पहले भी कोई तो राज करके चला गया है, और अभी जो यूपेश रीजन में चल रहा है उसका भी क्लियरिटी मिलेगा कि उसका क्या चल रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है। आई थिंक ये सब वो है। ठीक है। देयर लैंग्वेज कंसिस्टेड वेरी फ्यू कैरेक्टर्स. they like to give context on the text with images.
This prophecy came with three parts. The first part goes like this: a majestic light, which once came to destroy us, will shine upon us in for millennia. This highly suggested they are whipped out by something, and that something will return in about 4,000 years. This is a wild thought, but it's possible the meteorite which you said caused the great eclipse is actually this one. Isn't it possible that the asteroid is a majestic light? But the great eclipse did not wipe out nations, and is widely known in UP's history, but there is no crucial evidence that the meteorite is actually as old as the event. Means the meteorite could have arrived way before the great eclipse. It is possible that meteorite is actually thousands of years old. It is possible. Let's go to the second part. That might help us more. सेकंड पार्ट से पहले बता दूँ, ये कुछ मीटेरॉइड के हमने बीच में एक एपिसोड हुआ था जिसमें मीटेरॉइड की बात हुई थी. मीटेरॉइड गिरा, फिर एक्लिप्सिंग वगैरह वो चालू हुआ. यहाँ पे उसकी बात हो रही थी कि क्या वो मीटेरॉइड इससे जुड़ा हुआ है या फिर क्या बोलते हैं, एक्लिप्सिंग के बाद मीटेरॉइड गिरा, ऐसा कुछ तो कह रहे हैं. इट वॉज एन एंजल विच मेड द डार्कनेस ऑफ द नाइट ब्राइट लाइक द चेरिशिंग सन. अच्छा, आई थिंक this is when the meteorite exploded caused a flash brightening at the night. It aligns so far with my theory. थर्ड वाला पार्ट है, तो मैं उसका भी बता देता हूँ कि वो जो meteorite जो रात में गिरा था, ऐसा कुछ तो था. वो meteorite रात में गिरा, पर वो ऐसा गिरा कि पूरा उसने दिन कर दिया. तो उसके हिसाब से जो उसका थ्योरी है आइवो का, कि जो ये इक्लिप्स पोकेमोन वगैरह है वो सब रात में शायद से ये हुए होंगे. इंग्लिश इतनी आती नहीं, बट थोड़ा थोड़ा समझा पा रहा हूँ मैं. एंड फाइनली द थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट, द एंगल लैस्ट हर एंगर ऑन अस एंड वी perished too obviously. But the next time the people will be ready. Three glimpses of light. Three of the youth will arise to protect from judgment, her anger. अच्छा, मतलब 3 लोग आएंगे. उसका वो जो लेडी थी, मतलब वो जो था एक्लिप्सिंग का लेडी, एक्लिप्सिंग का जो वो था पत्थर था, जो भी मेटेरॉइड वगैरह जो था, उसको जो कंट्रोल कर रही थी, उससे बचाने के लिए कोई 3 लोग आएंगे, ऐसा कुछ है. दिस इज़ हाउ मच आई कुड रिकवर फ्रॉम द obscurity. To be honest, I have no idea what that third part could mean exactly. This is what I wanted to show you. I think it has connection to the eclipsing as a whole, and I wanted to see if you think so too. In my opinion, based on all this, I would say I'm sure there is some relation between the two. Thanks for coming here for this. I'll head back to the lab. Maybe I can find further details. So I wonder what all of this means in since prophecy. When is it is supposed to come true. अच्छा, तो मतलब लाइक मेरे अगर मानो, तुम लोग मेरी मानो, तो शायद ना यहाँ पे ये हो सकता है कि मैं फ्रियो, एशर, फ्रियो एंड वो, अ मैसेज फ्रॉम एमोर बैटल सेंटर, डियर कंटेस्टेंट,
The fourth round of the Eclipse tournament is about to start. Please head back to the battle center in Hamor City to participate in the round battles. If you have questions, be sure to ask the receptions in the building where you signed in. ठीक है, ये सब वो बता रही। तो शायद से देखो अभी बैटल टूर्नामेंट शुरू होगा हमारा, तो बैटल टूर्नामेंट में शायद से नेक्स्ट एपिसोड में डालूँ, या तो फिर मैं इस एपिसोड को और बड़ा कर दूँ। क्योंकि देखो यहाँ पे बात वही आती है कि अगर हमने एपिसोड बड़ा किया तो कम लोग अगर एपिसोड बड़ा किया तो मेरे को ट्रेनिंग वगैरह करना पड़ेगा, और जो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है अभी के हिसाब से, तो मेरे को इसका टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या किया जाए? तो रुको मैं हील वगैरह करता हूँ, फिर सोचता हूँ कि क्या किया जाए। ठीक है, पहले हम देखते कि क्या किया जा सकता है। मैंने सोचा ये है कि हम टूर्नामेंट करेंगे, क्योंकि एपिसोड की भी बस शुरुआत ही हुई है, तो मैं टूर्नामेंट कंटिन्यू करना पसंद करूँगा। तो वीडियो कट वट नहीं होगा, जो कि एक अच्छी बात है। तो चलो हम टूर्नामेंट में चलेंगे। और इतनी जल्दी टूर्नामेंट हो भी गया यार, कल ही तो हमने कल के एपिसोड में तो टूर्नामेंट बैटल की थी। कोई ना, एक बार अपन यहाँ पे हेलो वेलकम टू, ठीक है, हाँ ठीक है समझ गया। अभी चलेंगे बैटल टावर के चौथे राउंड में, जो कि मे भी हम जीत सकेंगे। और मेरे को रिवाइव एक बार खरीद के लेके आने दो। एक बार हम जो है रिवाइव खरीद के आएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है कि हमें रिवाइव की ज़रूरत पड़ने वाली है। कॉन्फिडेंस खुद पे रखना चाहिए, पर स्टिल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए किसी में, जो कि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत घातक चीज़ होती है। मैं 11 खरीदूँगा, और सुपर पोशंस जितने आ सकते, एक ही आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक पोशन खरीद लेंगे, ठीक है। हाँ भाई, सारे पैसे उड़ा देने के, क्योंकि फिर बाद में जो है जब हम वाइटेड आउट हो जाते हैं या फिर ब्लैक आउट हो जाते हैं, तो उसमें हमको एडवांटेज मिलता है कि आगे वाले को पैसे कम दे, और हमारे पास जब हम जीतेंगे तो हमारे पास इनकम बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो चलो अभी बैटल टावर में कदम रखेंगे। ये वही सब बक करेगी, तो मैं ये बार बार नहीं पढ़ाने वाला तुम लोगों को। हम एक एक करके बैटल्स दिखाएंगे तुमको, ठीक है। लुकारियो अपन ने शायद से गलत पोकेमॉन, रुको गलत ये कर दिया। तो हमें और एक बात गाइस, मेरे को एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। एपिसोड के एंडिंग में हम पैम्पोर को भी इवॉल्व कर देंगे, जो कि मैंने कल पढ़ा था। कल मैंने पढ़ा था कि वो वाटर गन से इवॉल्व होगा, जब मैं इसकी इवोल्यूशन के बारे में ढूंढ रहा था। तो हम इसको इवॉल्व भी करेंगे। हिट मत कर देना खुद को, ये गलत बात है। कर्स यूज़ कर रहा है, यानी कि हम पे कर्स हो जाएगा अभी इसका, और ये गलत बात है। खुद की एचपी भी खा ली, एक अटैक मार दे बस, बहुत होगा एक अटैक। अबे यार, कर्स भी लग रहा है। रुक, एक अटैक, एक ही अटैक बस, जस्ट 1 हिट। गलत, ठीक है, एक चांस नहीं ले सकते, हम ले भी नहीं पाएंगे। तो अभी हम यूज़ करेंगे हमारी स्ट्रैटेजी तो कुछ बना के रखी नहीं है मैंने।
नाइट शेड सुपर इफेक्टिव तो नहीं है ना? नहीं है। शॉक वेव यूज़ करेंगे जो कि 1 हिट के ओ कर ही दिया है उसने, अच्छी बात है। अबाउट टू यूज़ देखिए सब। ये कौन सा पोकेमॉन है? नहीं, चेंज नहीं करूँगा मैं। शायद से यहाँ पे सब अच्छा नॉर्मल टाइप था, नॉर्मल यानी ग्राउंड टाइप आई थिंक। सो मे बी हमारे पास ग्रास टाइप ही एक ऑप्शन बचता है, बस उसके पास हमारे तरफ सुपर गया भाई। टेक डाउन कितना गंदा देता है। स्टिल वी विल यूज गिगा ड्रेन। वेनोसॉर की स्पीड ज़्यादा है बेटा, और इसी के साथ 1 हिट के ओ। एचपी भी फुल करा ली हमने। बेनेटा आ रहा है। ये कौन सा पोकेमॉन? मेरे को पोकेमॉन का नॉलेज है ही नहीं शायद से। स्टिल वी विल पुट आवर स्ट्रॉन्गर स्टोन लाइक निडोकिन, जिसका अटैक बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा ये है, वो पता नहीं, वो पोकेमॉन्स के बारे में भी पता करना पड़ेगा, बहुत सी बात है। मैं क्या कहता हूँ, मैं सीधा आज के एपिसोड में मेन बैटल दिखा सकता हूँ। मैं नहीं पता कितना सही रहेगा, मतलब ये सब बैटल्स हम फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे, और जो मेन बैटल रहेगा विगोरोथ आ रहा है। नहीं कोई गल नहीं, विगोरोथ के लिए भी एक फाइटिंग टाइप है। गलत, विगोरोथ एक फाइटिंग टाइप है ना शायद से। हमारे पास था एक फ्लाइंग टाइप अटैक पैक करके, बट स्टिल दैट वाज नॉट यूजफुल। कर्स से हिट होएगा, हम पोकेमॉन चेंज करेंगे, और इस बैटल के बाद इसको ये देंगे, हम हेल्थ देंगे। रैप्टर आ गया। रैप्टर के पास इंटीमेट क्या है वो? इंटीमेट ये क्या भाई? इंटीमेट नहीं है वो, कुछ और मत समझ लेना गाइस। ओके, बट इट फेल्ड, अच्छी बात है। और इसे हमने ये बैटल जीत लिया, और हम ये बैटल जीत चुके हैं। उसका बैग भी बहुत बढ़िया है भाई। आई होप कि मैं वो बैग खरीद सकूं। ठीक है, पहला राउंड ख़त्म। हम सबसे पहले हील करेंगे, जो कि ज़रूरी है। नेगेट रिवाइव 30 है हमारे पास। वोल्ट की स्टोन की ज़रूरत नहीं है, सुपर पोशंस की तरह ऊपर रहेंगे कहीं में। हाँ यहाँ पे सुपर पोशंस। नॉर्मली दो पोशंस मार लेंगे, दो नहीं एक ही पोशंस दे देंगे सबको, जो कि एकदम यूज़फुल चीज़ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे कहीं पे नहीं जा सकते क्या? हम सीधा लाइक अंदर ही जा सकते हैं क्या? अच्छा, ये कुछ बोलेगा लाइक देखते। अरे टाइम पास मित्र, टाइम पास नहीं करना है हमें। आज का वीडियो इतना बड़ा नहीं बनाना, जो कि पिछला वाला हो चुका था। इसके पास ग्रास टाइप पोकेमॉन है, और हमने भेज दिया लुकारियो पहले, तो मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें सुपर इफेक्टिव रहेगी, बट स्टिल पैरालाइज कर ही दिया हमने। ये क्या कर रहा था पता नहीं। चलो ये लाइक एचपी रिकवर करता रहेगा। फोर्स का यूज़ करेंगे,
क्विकसेंट का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा मे बी। ये क्या रहता है भाई एवेस, ये सेंस रहता है क्या किस टाइप का। और इसके साथ हमने कार्निवाइन को हरा दिया है। अगला पोकेमोन कौन सा आ रहा है इसका। और हमारा लुकारियो लेवल 32 का हो चुका है, जो कि पहले एक छोटा सा बच्चा था, रियोलू था। फायर पंच सीख रहा है भाई, डैम। एक फायर पंच तो मैं पक्का सिखाऊंगा भाई। मेटल क्लॉ 50 का दे रहा है और ये देता है 75 का। तो मैं ना क्यूक अटैक लग सकता है मैं कभी भी इन फ्यूचर वगैरह, तो मैं सोच ये रहा हूँ कि मैं मेटल क्लॉ हटा दूँ। नेस्टी प्लॉट भी नहीं हटा सकता ना इससे, चलो यार हटा देते हैं नेस्टी प्लॉट। अटैक मूव स्टार्ट बहुत गंदा है मेरा, पता है। अरे यार मैंने फास्ट के चक्कर में देखा ही नहीं, बट स्टिल वी विल यूज दिस वन बिकॉज ही इज़ द वन हु इज स्ट्रॉन्ग इन माई टीम। और आज का वीडियो भी बड़ा होने वाला है गाइस। क्रायोगोनल कौन सा पोकेमोन लेके आए हैं भाई ये। स्टिल वी विल यूज विंग अटैक, क्या पता सुपर इफेक्टिव हो। ओ भाई सुपर इफेक्टिव तो नहीं था बट तगड़ा हिट तो दिया है, मतलब हिट तो तगड़ा दिया है भाई। एसिड आर्मर से उसका वो बढ़ गया ना एचपी, मतलब डिफेंस। कौन सा आ रहा है डीन, मतलब उससे तो फायर टाइप लग रहा है, तो पैम्पो को यूज़ करेंगे। और आज के एपिसोड में पैम्पोर को भी इवॉल्व करेंगे। अच्छा ये तो ग्रास टाइप है। एक्रोबैटिक्स, अरे ये है ना एक्रोबैटिक्स, सही है। सुपर इफेक्टिव बाइट से क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, पता नहीं। ऐसे अजीबोगरीब अटैक स्टैट्स में कहाँ से लाता हूँ, बट स्टिल आई डू। और इसी के साथ इसको भी हमने हरा दिया है। अभी हम खेलेंगे सिल्वर के साथ, जो कि हमारी राइवल मतलब फाइनलिस्ट रहेगी। मैं सबसे पहले हील कर लेता हूँ, बैग में से हीलिंग आइटम्स हैं। सुपर पोशन दूंगा आज का। अरे पोशन देने थे, चलो कोई नहीं, सुपर पोशन भी ठीक है। इथर है मेरे पास एक, 5 HP 3 HP, उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मैं रख सकता हूँ। ओके इसके साथ थोड़ी बातचीत करेंगे। सो यू आर माई फाइनल अपोनेंट दिस राउंड, माई नेम इज सिल्वर, आई केम फ्रॉम जोटो रीजन, यू डोंट लुक लाइक मच, आई बेट माई पोकेमोन विल फमिल यू। देखते हैं भाई कौन किसका पोकेमोन मारेगा। रिवाइल है जो कि पता नहीं, डैम भाई गलत पोकेमोन। इफेक्टिव अटैक, ओहो हो 1 हिट के, ओ भाई तगड़ा स्ट्रॉन्ग है ये तो। क्रोबैट आ रहा है, उसके लिए हम हमारे ये एम्फेरस को भेजेंगे। सॉरी फॉर कट। टॉक्सिक यूज़ करेगी, आई थिंक बहुत HP जाने वाली है। HP नहीं जाती क्या इससे? ओके ब्रो डैम। क्रोबैट की स्पीड बहुत तगड़ी है भाई, लाइक आई यूज टू यूज हिम इन, सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस। थंडर शॉक देंगे एक, ब्रेव वर्ड, बट आई थिंक सुपर इफेक्टिव नहीं रहेगा। ये बैटल थोड़ा ज़्यादा इजी नहीं हो गया क्या? लाइक पिछले बैटल से तो बहुत इजी हो गया ये वाला बैटल। पिछला जो था मेरे को बहुत तगड़ा, उसको 2 बार हराना पड़ा, 2 बार हराने के लिए जाना पड़ा था। मैग्नीजोन आ रहा है,
तो मैग्नीजोन के लिए हम लुकारियो लाएंगे, जिसके पास अभी अभी फायर पंच आया है, और उसको फायर पंच सिखा के मैंने बहुत अच्छा किया। लेवल 30 का है, और इसी के साथ हम जीतेंगे, धीरे धीरे जीतेंगे। इतनी जल्दी नहीं है हमें जीतने की। मेरे को लगा 1 हिट के वो हो जाएगा, पर उसका वो स्ट्रॉन्ग है, मैग्नीजोन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। डिफेंस क्यों बढ़ा रहा है भाई? इतना डिफेंस बढ़ाने से क्या होगा? कुछ होने वाला है क्या? वो बचने वाला है क्या 1-2 HP पे? और फिर मेरे को 1 हिट के वो करने वाला है। हाँ, वही करने वाला था, पर इसने थंडरबोल्ट दिया, बच गया। बस 1 हिट कर दे भाई। सुपर पोशन यूज़ कर लिया, हाइपर पोशन, सुपर पोशन भी नहीं। वाह, सही है। कोई ना, जाते जाते 1 हिट। सॉरी फॉर दिस गाइस। जाते जाते एटलीस्ट 1 हिट तो मार ही दिया हमने। फिर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ये रॉकटॉम यूज़ करेंगे। आई होप दिस विल इफेक्ट हिम। क्या नॉट वेरी इफेक्टिव? ये तो गलत बात है भाई, ये कैसे बात है? ये गलत बात है, ये तो एकदम गलत बात होगी। डबल किक से तो कुछ होने वाला है नहीं उसे। सुपर इफेक्टिव रह के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। एनर्जी बॉल गया, नहीं गया, बच गया। चलो थोड़ा थोड़ा करके हराएंगे इसे। अपने पास रिवाइव्स भी बहुत सारे हैं, थोड़ा 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 करके हराएंगे, इतनी कोई जल्दी भी नहीं है। अटैक भी नहीं मिस होते इसके तो। वाटर टाइप पोकेमॉन लाएंगे इसके सामने, और लुकारियो को पहले जिंदा करेंगे। पहले क्या करते हैं, पहले हम लुकारियो को जिंदा करते हैं, बैग में से रिवाइव निकाल के। 2 मिनट का काम है भाई। रिवाइव किधर गए हमारे? ठीक है, थंडरबोल्ट आई नो कि गलत था, बट स्टिल लुकारियो, फोर्स पाम सुपर इफेक्टिव था। 1 HP पे भी बच गया तो भी चल जाता, पर नहीं बचा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन इलेक्ट्रिक टाइप लेके आएंगे, फिर से उसे रिवाइव करेंगे। दो ही मिनट दो गाइस हमें। लुकारियो को रिवाइव करेंगे। इसने भी हाइपर पोशन यूज़ कर लिया। अभी हेल्थ खेलने की बारी है गाइस, बट आई विल जस्ट कुर्बान माई 1 पोकेमॉन। इसको भी रिवाइव करेंगे जल्दी ही, पर अभी नहीं। बच जाएगा, 1 उसके से बचेगा है, नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं है। we'll still going to use him because he is the one I think who will just help us. नॉट वेरी इफेक्टिव हुआ। वाह, अपने भी थंडरबोल्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा, आई नो। ठीक है, एनर्जी बॉल तो रह सकता, बट स्टिल वी विल जस्ट यूज 1 थिंग इन द बैक, एंड विच इज़ हाइपर पोशन, जिसकी मुझे भी बहुत ज़रूरत है। वेयर इज़ द हाइपर पोशन? चलो कोई ना, सुपर पोशन यूज़ कर लेते हैं, किसी एक पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है।
इसकी HP रिकवर हो गई। थंडरबोल्ट से इतना कुछ होगा नहीं। पैरालाइज हो गया पर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को एम्फियर इसको रिवाइव करना चाहिए। ये वाला बैटल भी, आज का बैटल भी थोड़ा बड़ा रहेगा। सह जाएगा ये इतनी चीज़ें। आज अपन हील करके खेल रहे हैं। एक और हमला सह जाएगा आई थिंक। हम इसको फिर रिवाइव कर देंगे। अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी हम यूज़ करेंगे हमारा लुकारियो। फायर पंच, कुछ भी नहीं हुआ उसको तो, वाह। गया। स्टिल कुछ भी नहीं हुआ। थंडरबोल्ट मार रहा। वापस से वही सब स्ट्रेटजीज ट्राई करेंगे। जो कि इस बार बस उसने वो यूज़ ना किया हो। सुपर पोशन या हाइपर पोशन कुछ यूज़ ना करे, बस एनर्जी बॉल से ही मारेगा ये भी। सुपर पोशन यूज़ ना करे बस। अभी यूज़ करेगा सुपर पोशन, हाइपर पोशन, जो भी है। नो वरीज। We will simply change the Pokemon and revive the other one. आज का हमारा स्ट्रेटजी ये रहेगा। इसको रिवाइव करना है मेरे को। स्ट्रॉन्ग है हमारे में से। बैग में से जाके एक सुपर पोशन भी दे देंगे। ठीक है। और एक और को रिवाइव दे देंगे, जो कि अपना रहेगा बैकअप प्लान। ग्रास टाइप पोकेमॉन। हाँ बस, ठीक है। निडोकिंग वापस से आके जलवा दिखाओ और इसको हरा दो। और ये मैं भी हरा भी सकता है। इसमें इतना पोटेंशियल है, ये हरा सकता है इससे। और इसी के साथ हमने स्ट्रेटजी के साथ इसको हरा दिया। विल लाइक डिफीट हिम विद द स्ट्रेटजी। विनोसॉर का भी बड़ा फेरेलिगेटर आ रहा है ना, तो उसके लिए मैं भी हमें रिवाइव लगेंगे। इसके लिए रिवाइव लगेगा। इसके पास वाटर टाइप है, पता है मेरे को, और फुल्ली इफेक्टिव है। नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर भी आपसे जीत सकते हैं, इतनी आशा हमारे पास है। ओ भाई डैम, मतलब ये कुछ भी। गया। इस पे भी सुपर इफेक्टिव अटैक है। 1 HP भी नहीं बचेगा। आई नो। क्या हमें वापस आना पड़ेगा या फिर नहीं, या फिर हम कुछ कर सकते हैं? पता नहीं कुछ कर सकते हैं या नहीं, पर आई होप कि हम कुछ कर सकेंगे।
नहीं किया तो फिर इसको हम अगले एपिसोड में ही देखेंगे। ओके, ये दे रहा है कुछ तो एचपी दे, कुछ तो डैमेज दे रहा है। अच्छा, ये रेन डांस कर करके वो बढ़ाएगा। और मैंने आई थिंक इसका क्विक अटैक नहीं है किया शायद, है ना। ओके, और इसी के साथ आज का बैटल भी जीत लिए है। और we won the today's battle. And the winner is Asher. I knew it. I got the winner point. और हमें ट्रॉफी भी मिल जाएगी। We have the trainer finished round 4. ठीक है, तो a message from dad. Hey son, I heard round 4 has ended. I will be in front of the battle center to pick you up. Ivo called me to pick you up for emergency meeting. Emergency meeting. What could be urgent battle? ठीक है, पिताश्री से मिलके देखना पड़ेगा कि क्या होगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं कल के एपिसोड में। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं कल के एपिसोड में। कल यहीं पे मिलूँगा मैं, क्योंकि कल की नहीं, अगले वाले एपिसोड में, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग होगा अगले वाले एपिसोड में, तो मिलेंगे। ठीक है, और उससे पहले मेरे 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। जाने से पहले ये एक लास्ट बात करनी थी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।